Assalamualaikum. This is the first introductory lecture of the course number 705, Pharmacy Practice. I am Dr. Shahana and I will take some lectures of this course just like the lectures of this 602. First of all, we will learn what is the pharmacy, and we will revise the things like what is the pharmacy practice, what is clinical pharmacy, certain definitions, what is the function, and what are the scopes of the pharmacy. And in this course, basically, we will also cover the hospital internship program. So a case study will be discussed at the last of the presentation, so that we can be able to collect the case and interpret it and make the soap notes as per the requirement. Now let's start it. So first of all, we will have to revise what is the pharmacy, as we are the pharmacy student, and now everyone should be able to define his profession. So pharmacy is basically the science that links the medical sciences with the chemistry, and it basically encompasses the discovery of the drug, its production into certain dosage form, and after that it will be realized by a patient by against certain diagnosis. कोई भी जो भी इसको डिजीज़ है पेशेंट को, उसके अगेंस्ट जो है वो मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब होती है बाय द डॉक्टर, बाय द फिजिशियन, and then this medication will be dispensed by a pharmacist. Then after that there will be the safe disposal of the drug and its safe and effective use, and the medication is under the control of a person which is shop which is usually legally licensed by government authorities. So we can say pharmacy is a science, as well as pharmacy is a place or a hospital dispensary where medicinal drugs are available, which are there to prepare. Either they are prepared there, or either they are ready to sold, and they previously it is called as the local pharmacy. Now the concept is changed. The term is now replaced by the community pharmacy. So it is, we can say that it is the science or practice of the preparation and dispensing of the drugs. What is the pharmacy practice? Pharmacy practice is basically several times it is misinterpreted, and basically the pharmacy practice is a dynamic discipline, or it is a department with the main objective is to give the knowledge or a platform to the student, and where the student can experience and the student are confident enough to provide support to the patients. And in which category they are providing the support to the patient, they are basically highlighting, they are basically guiding the patient regarding the therapeutic use of the drug, regarding the adverse effects of the drug, and these counseling, these information, these supports are basically helpful for the clinical decision of the drug, as well as it also helpful for achieving the definite patient outcome, which is the cure of the disease or the management of the disease. Pharmacy practice is basically focused on the patients and their needs. Patients have increased access to information of the medicines and their use from various sources and through various means. यानी अब पेशेंट के पास क्या है कि वो गूगल पे जाके खुद भी नॉलेज ले सकता है. However, there is a person which is a pharmacist which is always there at the community pharmacy to help the patient, to guide the patient and to counsel the patient, कि वो proper knowledge, proper references के साथ उस पेशेंट को जो है वो गाइड कर सके कि जो भी उसको मैनेज, जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो उसको कैसे टैकल कर सकता है. एंड नाउ द पेशेंट की एक रिक्वायरमेंट है, वो ये सपोज करता है, उसकी एक्सपेक्टेशन है फार्मासिस्ट से कि वो उसके पास जो है वो ही इज़ अ ड्रग एक्सपर्ट एंड ही इज़ अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एंड ही विल बी अ पर्सन विच इज़ वेरी इजीली एक्सेसिबल, एंड सो नाउ द स्टूडेंट शुड बी expert in all areas of the practice. So being a pharmacist,
each pharmacist, if they are practicing in a community pharmacy or in a hospital pharmacy and they are dealing with the patient, they should be have a content comprehensive information which is usually discussed in the pharmacy practice. Previously, pharmacy practice was come under the heading of the terminology of the clinical pharmacy. So, clinical pharmacy is the basically it is a discipline which is mainly concerned the use of medicine in patient, because हमारे पास medicine की कई हमारे पास aspects है, जिसमें उसकी dosage form preparation है, उसकी bioequivalence, उसकी clinical side है. So basically clinical pharmacy is deal with the use of medicine in patient, and it requires the proper application of the pharmaceutical sciences in order to solve drug therapy problem in individual patients. Because यहाँ पे अब हमारे पास दो चीज़ें merge होंगी, because pharmacokinetics is basically related to the pharmaceutical dosage form, कि जो भी हमारी जो drug है, if we discuss कि अगर हमारे पास drug है वो उसके दो aspects हैं, one is pharmacokinetics and one is pharmacodynamics. And in clinical situation, each pharmacist is basically interested in the pharmacodynamics, that is the patient should have effects, should have a proper therapeutic action जो जिसके लिए वो medicine prescribe की गई है. However, the drug has to be undergo several processes to the body which is come under the pharmacokinetics, and pharmacokinetics is basically linked with the pharmaceutical dosage form. So basically pharmaceutical care plan is basically the term is point, और अब जो है वो basically हम जो है वो pharmaceutical care हम basically use करते हैं, which is the integration of the clinical pharmacy practice, and it is basically the information, knowledge of a pharmacist, its attitude to provide the quality assurance of the medicines in use. तो commonly medicines जो हम use कर रहे हैं pharmacy पे, उनकी जो है वो assurance जो है वो pharmacist जो है वो provide करेगा towards the patient. It comes under the pharmaceutical care. If we talk about the procedure of the clinical pharmacy practice, जिसमें हम basically cases को भी discuss करेंगे, तो उसमें हमें basically ये देखना होगा कि we have to achieve a rational drug therapy, and for the proper rational drug therapy कोई भी मेडिसिन जो है वो जो भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब हुई है उसके लिए वी शुड नो द एक्यूरेट डायग्नोसिस. सबसे पहले जो है वो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि डायग्नोसिस जो है वो एक्यूरेट हो, एंड इट इज़ बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिजिशियन, नॉट द फार्मासिस्ट. हाउएवर प्रिस्क्रिप्शन पे फिर जो भी उसका प्रिस्क्रिप्शन होता है पेशेंट का, उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि व्हाट इज़ द डायग्नोसिस. फॉर एग्जांपल द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर और एक्सेट्रा. ठीक है, वट एवर द डायग्नोसिस, द फार्मासिस्ट शुड बी एक्सपर्ट ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिजीज. ब्रीफ उसको आइडिया हो कि डिजीज़ हो कैसे रही है. इसीलिए जब हम सोप नोट्स बनाएंगे, जब हम कोई केस स्टडी डिस्कस करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हमें जो है वो प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग आनी चाहिए कि डॉक्टर ने डायग्नोसिस कहाँ लिखी है. और जब डायग्नोसिस लिख दिए तो देन यू हैव टू गो टूवर्ड्स द इंटरनेट और योर पैथोफिजियोलॉजी और स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ दी पैथोलॉजी, जिसमें यू शुड रिकॉल योर नॉलेज ऑफ दी पैथोलॉजी. सारी तो मेडिसिन, सारी डिजीज़ तो इंसान को याद नहीं होती है. हाउएवर वॉट एवर द डायग्नोसिस, उसकी जो भी डायग्नोसिस में जो भी पैथोलॉजी मेंशन है, आप उसको जो है रिफ्रेश कर लेंगे. उसकी जो पूरी मैकेनिज्म है यू शुड नो. देन furthermore you should know the basic pharmacology and pharmacokinetics of the mentioned drug in the prescription. जो भी prescription में जो भी हमारे पास drugs हैं, to achieve the rational drug therapy you should know the basic pharmacology and basic pharmacokinetics, and we will not discuss here the basic pharmacology. हम उसकी basic pharmacology discuss नहीं करेंगे, and I will assume that कि आपको उसकी basic pharmacology पता हो, और ये जो भी फिजिकल क्लासेस होंगी उसमें हम फिर डिस्कस भी करेंगे कि आपको जो है कम से कम उसका मेन मैकेनिज्म पता हो और उसमें जो फार्माकोकाइनेटिक्स डिफरेंसेस हैं वो पता हो. फॉर एग्जांपल एक ड्रग है उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, एक ड्रग है उसकी हाफ लाइफ शॉर्ट है, तो फिर उसके हिसाब से उसकी डोजेज फ्रिक्वेंसी जो है वो एडजस्ट होती है. उसका मैकेनिज्म जो है वो उस पर डिपेंड करता है
उसकी हाफ लाइफ पे। तो ये सारी चीज़ें आई सपोज कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को पता होंगी। Furthermore, pharmacists should have an ability to transfer this knowledge into an effective way in a very short and precise manner. ये नहीं है कि पूरी कहानियाँ बताए फार्मासिस्ट, लेकिन ये है कि वो जो भी उसको मैकेनिज्म पता है वो बहुत ही इफेक्टिवली उसकी कम्युनिकेशन स्किल के जरिए वो फिर अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र भी करे। Furthermore, drug interaction and the chances of adverse drug reactions उसको पता हो कि कौन सा ऐसा एडवर्स ड्रग रिएक्शन है जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है। ये नहीं कि आपने बहुत सारी ड्रग रिएक्शंस पढ़ ली, लेकिन हर थेरेपी में हर उसका आपको पता होना चाहिए कि मेन जो है ड्रग इंटरेक्शन है वो क्या है और उसका मेन एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है। सो for achieving the rational drug therapy, another point is to know the medication therapy, medication related problems. अच्छा, furthermore plan of therapy भी एक आइडिया हो फार्मासिस्ट को कि what will be the plan of the therapy, क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन क्या है कि डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया एंड फार्मासिस्ट मस्ट नो कि क्या होता है, यूजुअली क्या प्लान होता है। तो फार्मासिस्ट को उस डिजीज़ का प्लान पता हो। Then pharmacist should also know the conditions and treated indications, यानी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं रैशनल ड्रग थेरेपी के अंदर, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि अनट्रीटेड हैं, तो उनको भी हाईलाइट किया जाए। अगर कोई ड्रग है वो इम्प्रॉपर सेलेक्ट हो गई है उसको हाईलाइट किया जाए। इफ़ द डोज इज सब थेरेप्यूटिक, प्रॉपर डोज नहीं है तो वो भी हाईलाइट करेंगे, वो भी मेंशन करेंगे, वो भी नोट डाउन करेंगे। और इफ़ किसी वजह से जो है मेडिकेशन जो है वो स्किप हो गई है, डोज स्किप हो गई है, मेडिकेशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, इन केस ऑफ डायबिटीज़, यूजुअली पेशेंट क्या करते हैं कि वो मेडिकेशंस जो हैं वो प्रॉपरली नहीं लेते डेली बेसिस पे, क्योंकि उनको सिम्टम्स नहीं आते। जब सिम्टम्स नहीं आते तो वो दे आर स्किपिंग दी medication. When they are skipping the medication, when they are avoiding the medication on their routine practice, तो फिर क्या होता है कि उनकी जो डिजीज़ है वो वर्सन की तरफ जा रही होती है और फिर वो हाईलाइट भी नहीं होती, बिकॉज दे आर नॉट मॉनिटरिंग एट ऑल। तो ये काउंसलिंग करना फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है, ना क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस, कि वो मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करे, उसके बारे में वेल अवेयर हो और वो फिर पेशेंट को गाइड करे इस बारे में कि वो फिर प्रॉपर जो है वो प्लान के साथ पेशेंट को काउंसिल करके उसको कन्विंस कर सके। और व्हाट आर दी अदर मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दीज आर दी ओवरडोजेज। ये भी हो सकता है कि कुछ जो है वो पेशेंट जो है वो ज़्यादा मेडिकेशंस ले लें या वो उस एज ग्रुप में हो जिसमें उनकी क्लियरेंस मेडिकेशन की उस तरह से नहीं हो रही जैसे कि एक नॉर्मल पेशेंट में होती है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ रीनली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट देयर आर चांसेस ऑफ ओवरडोजेज। इन केस ऑफ जेरियाट्रिक पेशेंट उसमें ऑलरेडी जो है वो लीवर फंक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, उनके हेपेटिक एंजाइम जो है वो डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल, तो उसमें ड्रग की मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, दैन इट मे लीड टू ओवरडोजेज एंड मे लीड टू एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो फार्मासिस्ट के टिप्स पे है। Then after assuming all these conditions, all these things, the pharmacist should have to prepare a pharmaceutical care plan, जिसमें वो रिकमेंडेशन करेगा कि किस तरह जो है वो पेशेंट की व्हाट इज़ द नीड ऑफ द पेशेंट नीड, एंड ही मस्ट स्पेसिफाई दी फार्माकोथेरेप्यूटिक गोल्स। गोल्स क्या हैं? गोल्स क्या होता है बेसिकली कि वो मैनेज द डिजीज, टू क्योर द डिजीज, ठीक है। देन आइडेंटिफाई दी रिकमेंडेशन, कोई रिकमेंडेशन करेगा। देन इट ऑल्सो डेवलप पेशेंट मॉनिटरिंग, कि किन बिहाफ पे पेशेंट को अपनी जो है थेरेपी को मॉनिटरिंग करनी है। तो कुछ टेस्ट जो है वो डॉक्टर ने दिए होंगे तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह जो है वो फार्मासिस्ट को काउंसिल करेगा पेशेंट को। द मेन टारगेट, द मेन प्लान इज टू अवॉइड दी टू एलिवेट दी एक्चुअल प्रॉब्लम एंड टू अवॉइड दी पोटेंशियल प्रॉब्लम, यानी कि जो भी करंट प्रॉब्लम है पेशेंट का वो क्योर हो जाए या एलिविएट हो जाए, एंड फर्दर उसमें उन ड्रग्स की वजह से कोई और प्रॉब्लम, कोई और डिजीज़ जो है वो क्रिएट ना हो, बिकॉज सेवरल ड्रग्स आर नेफ्रोटॉक्सिक, सेवरल ड्रग्स हैव पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स जो कि हमारे पास ऑर्गन डैमेज की तरफ भी जा सकते हैं। तो वो एडवर्स इफेक्ट्स पता हों और उनका सारा पोटेंशियल फार्मासिस्ट को पता हो, ये हम सब डिस्कस करेंगे अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ दी क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस। बिफोर डिस्कसिंग दी
केस स्टडी, हम एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले सब कुछ फंक्शंस हम देख लेते हैं फार्मेसी के, जिसमें फार्मासिस्ट को बेसिकली अपने जो है फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। इनमें बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ दी प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस हैं, जो भी मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब हुई हैं उनकी अगर वो न्यूअर मेडिकेशन है तो देयर विल बी सम ड्रग डेवलपमेंट। अगर रिसर्च में है फार्मासिस्ट तो वो फिर ड्रग डेवलपमेंट फेज में उसको डिस्कस डील करेगा। इफ इट इज अ कमिटी फार्मासिस्ट देन ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग, प्रॉपर डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिकेशन अलॉन्ग विद द काउंसलिंग। तो वो काउंसलिंग भी करेगा और साथ साथ जो है वो प्रॉपर डिस्पेंसिंग करेगा, प्रॉपर स्टोरेज में रखेगा। इट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमिटी फार्मासिस्ट। एंड देन द फार्मासिस्ट शुड गाइड द पेशेंट रिगार्डिंग दी क्रॉनिक कंडीशन। कुछ कंडीशंस होती है जो कि क्रॉनिक होती है, विच नीड्स रिपीट प्रिस्क्राइबिंग, विच नीड्स मॉनिटरिंग थेरेप्यूटिक आउटकम्स, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव दी क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर क्रॉनिक कंडीशंस मैनेज नहीं हो रही हैं तो फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव नहीं होगी। फर्दरमोर कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि नॉर्मली एक पेशेंट जो है वो सफ़र करता है, उसके लिए वो यूजुअली फिजिशियन के पास नहीं जाता है, तो उसके जो नॉर्मल कॉमन एलिमेंट्स हैं उसके लिए भी वो कुछ रिकमेंडेशन जो फार्मासिस्ट को पता हो और हेल्दी लाइफस्टाइल को वो प्रमोट करे, और नॉन फार्माकोलॉजिकल मीन्स के ज़रिए, काउंसलिंग के मेथड के ज़रिए, डाइट के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए और दूसरे अदर मीन्स जो भी नॉन फार्माकोलॉजिकल मीन्स हैं उनके ज़रिए भी वो पेशेंट को गाइड कर सके कि टू मॉडिफाई देयर लाइफस्टाइल दे कैन बी एबल टू रिड्यूस दी ड्रग यूटिलाइजेशन। यानी फार्मासिस्ट होने की बात ये नहीं है कि वो फार्मासिस्ट प्रेफर करे कि वो ड्रग यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करें। नो, फार्मासिस्ट का काम ये नहीं है कि वो ये कहे कि हाँ हर चीज़ के लिए आप मेडिसिन ले लें। नो, द फर्स्ट चॉइस फॉर द फार्मासिस्ट इज दैट कि वी शुड अवॉइड द मेडिसिन, कि हम अगर मेडिसिन के बगैर ही मैनेज हो सकती है डिजीज और कंडीशन, देन देयर इज नो नीड टू टेक मेडिसिन। फर्दरमोर as pharmacists promote the healthy lifestyle, it promotes health education, it promotes health screening, and it promotes a communication between the other healthcare professionals, and they provide advice and they provide support, especially in those settings where they are playing their part. For example, agar they are the part of the hospital pharmacist, then it is the responsibility of the pharmacist to guide the patient as well as to advise the physician as well. लेकिन उसके लिए फार्मासिस्ट की अपनी इस तरह की होनी चाहिए कि वो किसी को गाइड कर सके। तो इसके लिए बेटर जो पॉइंट है, बेटर टाइम है, वो ये है फाइनल ईयर है आपका, जिसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना है रिगार्डिंग दी ड्रग थेरेपी, सो दैट कि यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद दी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। As we have discussed that pharmacist's main role is the rational use of medications and disease management, and these functions are basically performed by the management of the drug therapy. The whole pharmacy process is basically done, and the pharmacist should participate by describing the cost effectiveness एंड दी सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। यानी हमें दो चीज़ें बेसिकली कंसीडर करनी है कि कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो, एज इट इज़ अ सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें बेसिकली जो मसला है वो पेशेंट का वो ये भी होता है कि अगर बहुत ही पुअर पॉपुलेशन से वो बिलोंग करता है, मिडिल क्लास से बिलोंग करता है या लोअर क्लास से बिलोंग करता है, दैन ही इज़ नॉट ईगर टू टेक मेडिकेशन बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी। तो cost effectiveness is also play very important part for the continuity of the treatment. तो उसके लिए भी जो है वो उसके alternatives pharmacist जो है वो रिकमेंड करे कि कौन कौन से alternatives आर अवेलेबल, और उसके हिसाब से फिर वो पेशेंट केयर को जो है वो हाईलाइट कर सके। यानी फार्मेसी का काम जो है वो बहुत न्यूट्रल और बहुत ही ज़्यादा पेशेंट वेलफेयर से रिलेटेड है। यानी वो बहुत ही ज़्यादा वेल बीइंग ऑफ पेशेंट का, कि वो पेशेंट की हेल्थ को लेकर जो है वो सीरियस है। Furthermore, if the pharmacist is a part of hospital, then he is responsible for the participating in the development of the hospital formularies, and he is also responsible for the preparation of the clinical guidelines and protocols, and the method to analyze the prescribing information and drug use evaluation data. It means कि
जो भी हॉस्पिटल के अंदर ड्रग प्रिस्क्राइब हो रही है उसकी जो फार्मास्यूटिकल एंड थेरेप्यूटिक कमेटी होती है, द फार्मासिस्ट शुड बी द पार्ट ऑफ दिस कमेटी एंड हेयर ही हैज़ टू प्ले देयर रोल रिगार्डिंग दी ड्रग डाटा। जो भी ड्रग का डाटा है उसके हिसाब से फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो पूरा डाटा जो है वो उसकी एक्यूरेट डोजिंग के साथ उसकी गाइडलाइन बनाए और वो फिर प्रोवाइड करे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। He contributing towards the disease management by enhancement the compliance. Compliance कैसे enhance होगी? by adherence to the evidence based clinical guideline and monitoring the patient outcomes। यानी ये फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो चीज़ों को कंपेयर करें कि इंटरनेशनली नाउ गाइडलाइंस में अब ये चेंजेस आ रही है। फॉर एग्जांपल नाउ द फार्मासिस्ट शुड नो कि हाइपरटेंशन की जो लिमिट है वो इंक्रीज हो गई है, तो ये फार्मासिस्ट को पता हो गया वो 120 इज़ नॉट जो है वो हमारी बॉर्डर लाइन लिमिट नहीं है, वो 140 तक हो चुकी है और एल्डरली पेशेंट में वो 150 तक नॉर्मल हो चुकी है। तो ये फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि अगर कोई गाइडलाइन रिवाइज हो रही है, कोई डाटा चेंज हो रहा है, तो ये सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आए वो फार्मासिस्ट के पास आए और फार्मासिस्ट उसके लिए अपने आप को लिंक अप रखे इंटरनेट से और लेटेस्ट रिसर्च से, ताकि क्लिनिकल गाइडलाइन में जो भी मॉडिफिकेशन हुई है वो सबसे पहले फार्मासिस्ट को पता चले ताकि वो दूसरों को गाइड कर सके। फार्मासिस्ट जो है वो वर्क करे कोलैबोरेशन के साथ विद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू इंश्योर द प्रिस्क्राइबिंग with the proper objective, with accessing the patient profile and accessing the medical records and undertaking the counseling about the safe use of the drug। तो ये बेसिकली फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो पेशेंट को मॉनिटर करे, उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे एंड उनके एक्शंस को उनके जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करे बाय सजेस्टिंग दी सर्टेन एक्शंस। Furthermore, patient may suffering from different types of diseases, तो स्पेशल पॉपुलेशन में और एक्सट्रीम एजेस में स्पेशली पीडियाट्रिक्स से लेकर जेरियाट्रिक्स तक की जो ड्रग ट्रीटमेंट के अंदर डिफरेंसेस है, ही शुड नो कि कौन सी ड्रग है जो बच्चों में नहीं जाती है, कौन सी ड्रग है जो एल्डरली में नहीं जाती है, अगर एल्डरली में जाएगी तो व्हाट विल बी द डोज। तो दीज ऑल इन्फॉर्मेशन शुड हैव द फार्मासिस्ट शुड हैव। अगर ये इन्फॉर्मेशन फार्मासिस्ट के पास नहीं होगी तो देयर विल बी नो प्रॉपर ड्रग ट्रीटमेंट। Furthermore, another problem is regarding the narrow therapeutic index drugs। इसके अंदर जो है अगर उसकी जो ब्लड कंसनट्रेशन है अगर माइनर भी चेंज होगी तो उसका जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है वो नैरो है, उसकी जो इफेक्टिव कंसनट्रेशन है वो बहुत ही ईजिली कन्वर्ट हो जाएगी टॉक्सिक कंसनट्रेशन में एंड इट मे बी लीथल, इट मे बी लीड टू दी ऑर्गन डैमेज। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फार्मासिस्ट जो है वो पूरी जो है वो हॉस्पिटल में, स्पेशली ये हॉस्पिटल सेटिंग में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी ड्रग यूजुअली हॉस्पिटल में आईवी एडमिनिस्टर की फॉर्म में लगाई जाती हैं, तो उसमें भी फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है कि वहाँ पे वो उनकी फॉर्मुलरी में जो ऐसी ड्रग्स हैं जो कि नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है तो उनकी डोज, उनकी क्राइटेरिया, उनकी मॉनिटरिंग जो है वो प्रॉपर मेंशन हो और वो प्रॉपर की जाए। देन पेशेंट के अंदर ये भी होता है कि एक डिजीज़ के साथ साथ कुछ और डिजीज़ भी, तो कोमॉर्बिडिटी है, जब कोमॉर्बिडिटी है देयर विल बी द पॉलीफार्मेसी एंड पॉलीफार्मेसी के अंदर प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होती है अगर हमारे पास सिंगल हम ड्रग यूज़ करें उसके मुकाबले में और मल्टीपल ड्रग यूज़ के बाद उसमें जो है प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ये जो है सारी चीज़ें जो है वो फार्मासिस्ट जो है कंसिडर। What are the main scope and the function of the pharmacy practice? The main scope of the complete pharmacy की अगर हम बात करें तो उसमें बेसिकली कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग है, यानी आप अपनी फार्मेसी रन करनी है। however medication patient care is the main function of the pharmacist। कि वो अपना काम, अपना रोल प्ले करेगा ताकि जो भी क्लिनिकल सर्विसेज है वो इस काबिल हो कि वो क्लिनिकल सर्विसेज दे सके। Then he should be able to reviewing the medication for the safety and efficacy and he is basically providing the drug information। So within healthcare system, a pharmacist should be able for the assuring the safety and efficacy of a drug regarding the pharmacoeconomic issues। Basically we have four main points to achieving the cost effective patient care। These are the therapeutic and professional intervention outcomes management and it start from the direct and indirect cost of the therapy। यानी इसमें आप ये समझ सकते हैं कि डॉक्टर की फीस और उसकी मेडिकेशन का
की फ़ीस एंड लैब की फ़ीस, तो ये सारे मिलकर जो है हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो कि थेरेपी को इंक्रीज़ करते हैं। देन देयर इज़ अ फार्मासिस्ट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कम्युनिटी फार्मेसी पे जाके अपनी जो है वो डिलीवरी दे रहा है, तो उसके बाद जो है वो अगर वो रिप्लेस करता है दैन इट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट कि वो गाइड कर सके पेशेंट को कि कॉस्ट इफेक्टिव रहते हुए अपनी जो है डिजीज़ को कैसे मैनेज करना है। और जो मोस्ट ईजीएस्ट वे इज़ टू मॉडिफाई दी लाइफ स्टाइल, यानी इंसान हमारी जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहते, जो हम हमारी प्रैक्टिस ज़िंदगी की हैं हम उसको रखना चाहते हैं। तो मेन अचीवमेंट ये है कि हम ड्रग की मॉडिफिकेशन की बजाय हम अगर लाइफ स्टाइल को भी मॉडिफाई करेंगे उससे भी हमारी बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो मैनेज हो जाती हैं या उनकी सीवियरिटी ज़रा सी लो हो जाती है। तो उस सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो फार्मासिस्ट की है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि फार्मासिस्ट अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा वो ये है कि फार्मासिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी क्वालिटी असेसमेंट एंड दी क्वालिटी चेक ऑफ इन अ हॉस्पिटल एंड बेसिकली cost effectiveness and patient satisfaction should be monitored by a pharmacist, and this patient satisfaction is usually assessed by the pharmacist using certain type of questionnaire, जिसकी मदद से जो है वो पेशेंट जो है वो हाईलाइट करेगा कि वो अपने ट्रीटमेंट से सेटिस्फाई है या नहीं है या इट ही नीड्स चेंजेस। So pharmacist can use the diagnostic results, can use the medical records and can maintain the database to provide the information to allow the periodical reviews। यानी हर साल का एक रिव्यू जो है वो फार्मासिस्ट निकाल सकता है, लेकिन अगर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे, फॉर एग्जांपल अगर वो कम्युनिटी फार्मेसी में अपनी एरिया का देख रहे हैं तो वो देख सकता है कि कितने हाइपरटेंशन पीपल हैं, कौन सी मेडिकेशन ले रहे हैं, किस मेडिकेशन से उनमें ट्रीटमेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है, किससे लेने से जो है वो कंटिन्यूस एक तो वो ले भी नहीं पा रहे और फिर उसमें जो है गैप्स भी आ रहे हैं और फिर ट्रीटमेंट फेलियर आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बेसिकली फार्मासिस्ट कैन रिकॉर्ड एंड कैन publish. However, it is a difficult task, and because the compilation of data is time consuming and there is a resistance from other health professionals, जिसमें basically डॉक्टर जो है वो इस बात को कंसिडर नहीं करते कि there should be another check, अगर कि उनके अलावा भी कोई और चेक होगा तो जो क्रॉस चेक से बहुत ही ज़्यादा पेशेंट की क्वालिटी इंप्रूव होगी। और जो मेडिकेशन एरर्स हैं यूजली ये इसलिए होते हैं क्योंकि डॉक्टर के बाद जो है अगर वो कोई मिस्टेक निकल गई तो फिर वो उसको चेक करने के लिए फार्मासिस्ट वहाँ पे फार्मेसी पे नहीं है, या अगर है तो वो उस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा जैसे कि करना चाहिए। तो इफ़ वी समराइज दैट फार्मेसी इज़ बेसिकली health profession that is linked with the health sciences, with chemical sciences, and it is basically responsible for ensuring the safe and effective use of the pharmaceutical drugs. And the main purpose of the pharmacy practice is the compounding and dispensing, no doubt. However, it also provides clinical services. It also responsible for reviewing the medications and maintaining the records of the patient and counseling the patient. And it's also a drug expert. We can say that जो भी drug therapy है, and he is the sole person which also able to suggest advice to other healthcare professional, and it may optimize the medication use and it may improve the patient with the positive health outcomes। यानी अगर इसको पॉजिटिव वे में लें तो ये है कि ये पेशेंट का जो हेल्थ है, पेशेंट की जो उसकी थेरेपी मैनेजमेंट है उसको बहुत ही अच्छा इम्प्रूव करता है बाय रिड्यूसिंग द मेडिकेशन एरर्स, बाय इंक्रीजिंग द पेशेंट एडहेरेंस, बाय इम्प्रूविंग द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ देयर मेडिकल कंडीशन, एंड बाय reducing or minimizing the incidence of the adverse drug reactions, by reducing the drug-drug interactions. So it basically improves the patient outcomes and patient satisfaction. Now, how the pharmacist is basically achieving achieving all these goals, and there is a pattern जिसको एक फार्मासिस्ट यूजली फॉलो करेगा so that कि वो हर केस स्टडी को सॉल्व कर सके। हाउ वी विल लर्न इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इसमें अगर हम देखें तो टू अचीव, बल्कि हम उसको नेक्स्ट पॉइंट में कर लेते हैं क्योंकि हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। थैंक यू for listening the lecture. You should note down the lecture
मैं पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है वो जो है शेयर नहीं करूँगी, तो इट इज़ मैंडेटरी कि आप लेक्चर को जो है वो नोट डाउन करें अपने पास, अदरवाइज जब आपके पास पेपर में आएगा दैन यू हैव टू व्यू द लेक्चर्स, तो आपको दोबारा देखना पड़ेगा। थैंक यू।